Welcome to lecture number 23 of Pakistan Studies for grade 9. This is our Pakistan Studies book by Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar. Student open your Pakistan Studies book. Today our topic is 1962 Constitution. Page number 80 and 81. First of all, open page number 80 of your Pakistan Studies book, chapter number 4, History of Pakistan, page number 80. Now, page number 80, Constitution of 1962. Now, 1962 Constitution was formed. Actually, President Ayub Khan formed a constitutional commission in 1961. When in 1961, which was headed by Justice Shahabuddin, but Ayub Khan rejected the recommendations of this committee. Why rejected? Because majority of recommendation were not acceptable to Ayub Khan. That's why Ayub Khan framed another constitutional committee and imposed through an ordinance. It took about 4 months to finally drop the constitution, which was announced in the broadcast to the nation by Ayub Khan on 1st March 1962. The 1962 Constitution contained 250 articles. How many articles? 1962 Constitution contained 250 articles. Write down 250 articles. Divide into 12 parts. Divide into how many parts? Divide into 12 parts. And consists of 3 schedules. It most again 1962 Constitution contained 250 articles, divide into 12 parts and 3 schedules. Now the most distinguished feature of 1962 Constitution was that the introduction of the presidential system of the government. Constitution of 1962. मुल्क में आईन नहीं था, आईनी बहरान था, मुल्क बगैर आईन के चल रहा था थ्रू ऑर्डिनेंस के ज़रिए, मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस जो अयूब खान ने वक्तन फ़वक्तन जारी की थी। तो मुल्क के लिए एक परमानेंट कंस्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। तो 1962 में सेकेंड कंस्टिट्यूशन बन गया पाकिस्तान। Now President Ayub Khan formed a constitutional commission which was headed by Justice Shahabuddin. अयूब खान ने एक कमीशन बनाया। कौन सा कमीशन? कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी कमीशन बनाया। और उसी कमीशन का हेड कौन था? हाईलाइटेड दिस जस्टिस शहाबुद्दीन। Who was the head of this constitution commission? Justice Shahabuddin. What was the work of this constitutional commission? To frame a new constitution for the country, कि नया आईन बनाए कंट्री के लिए। इस कमीशन का काम था। This commission kept in mind past and present of the country. इस कमीशन ने माइंड में, जहन में क्या रखा? पास्ट अपनी माजी को और प्रेसिडेंट को। किस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले हो गया, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी चाहिए, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को देखती हुई इसी कमीशन ने क्या किया? सबमिटेड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट इन 1961। रिकमेंडेशन मीन तजावीज़। तो इसी ही कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ने डिफरेंट आईनी तजावीज़ गवर्नमेंट को पेश की। कब? हाईलाइटेड इन 1961। व्हेन? In 1961, this constitutional commission submitted different recommendation to the government. But
Interesting that majority of recommendation of this commission were not acceptable to the President Ayub Khan himself. Therefore, he framed another constitution committee. क्या थी इसमें कि ये जो रिकमेंडेशन थी ज्यादातर ये क्या थी, ये अयूब खान को एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो इसी वजह से उसने एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई और उसे जिम्मे लगा दिया कि नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे. नाउ दैट कमेटी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. The prime constitution of that committee was imposed by Ayub Khan through an ordinance on 1st March 1962. उसी ने ये इम्पोज किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए, कब? 1 मार्च 1962. इसी ने ये जो दूसरी कमेटी थी इसने आईन बनाया कंट्री की और उसको अगर हम देख ले यहाँ पर ऑर्डिनेंस के जरिए इनको लागू किया, सदारती हुक्म के जरिए. On 1st March 1962, Cup highlighted this word 1st March 1962. In this way, second constitution was imposed in the country after the interim period of 3 years and 9 months. नया constitution जो first constitution जो 1956 था उसको ब्रोगेट किया गया था 1958 में. तो इसी की 3 मंथ बाद और 3 years और 9 मंथ बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इम्पोज हो गया कंट्री में. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज. salient features of constitution of 1962 constitutional reform. ये constitutional reforms थे. इसी के हम 1962 constitution की features पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है. Following are the salient features of 1962 constitution. First of all, the original constitution did not contain a list of fundamental rights, but later on a list of fundamental rights were included in the constitution. इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1962 में, इसमें फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट नहीं था, जो बुनियादी हुकूक थे इंसान के, तो इसमें वो लिस्ट नहीं था. फिर बाद में इसको जो फंडामेंटल राइट का लिस्ट था इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल, the original constitution did not contain a list of fundamental rights, but later on a list of fundamental rights was included in the constitution. Second point, presidential system was introduced in the country under the constitution. 1962 constitution में क्या हुआ? अयूब खान ने कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो गया यहाँ पर, तो उसने एक नया सिस्टम बनाया यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पर सदर के साथ ज्यादा इख्तियारात हों. अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ ले तो वह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म के साथ ज्यादा इख्तियारात होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं. तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास सदर के पास ज्यादा इख्तियारात होते हैं. तो ये अयूब खान ने अपने आप को मजबूत मोर पावरफुल बनाने के लिए कि ज्यादा अथॉरिटी मेरे पास रहे, तो इसने कौन सा सिस्टम बना लिया? प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में. 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री था और ये सदारती निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. इसमें इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी 5 टर्म. सदर 5 साल के लिए होगा, जो इलेक्शन होंगे वो 5 साल बाद होंगे. हाईलाइटेड 5 years टर्म. सदर की इलेक्शन के लिए हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे. The constitution declared the country one federation consisted of the 2 provinces East and West Pakistan. उसी में भी 1 यूनिट सिस्टम को प्रिवेल किया गया, बरकरार रखा गया कि कंस्टिट्यूशन फेडरेशन होगा, फेडरल होगा और वो कंसिस्ट होगा, यानी वो फेडरेशन 2 प्रोविंसेस पर, यानी 2 प्रोविंस पर, एक ईस्ट पाकिस्तान होगा और दूसरा
वेस्ट पाकिस्तान होगा। क्या कि वो फेडरेशन कंसिस्ट होगा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर। अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या है, बांग्लादेश जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था इस वक्त तो, और फिर 1971 में हमसे जुदा हो गया। तो वेस्ट पाकिस्तान यानी वन यूनिट सिस्टम जो था कि जो कैपी था NWFP सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाकर वन यूनिट बनाया गया। इसी पार्ट को क्या कहा उसने, वेस्ट पाकिस्तान। इन चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया, इनको वेस्ट पाकिस्तान, और जो बंगाल था इनको ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी इनको बरकरार रखा है। जो फेडरेशन है वो कंसिस्ट होगी 2 प्रोविंसेस पर, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर। Both Urdu and Bengali were declared the national languages of Pakistan. National language of Pakistan will be Urdu and Bengali. उर्दू को भी बरकरार रखा गया नेशनल लैंग्वेज को, और बंगाली को भी, कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू और बंगाली होगी। While English was given the status of official language. इंग्लिश को दफ्तरी जुबान, जो दफ्तर में इस्तेमाल होगा उनको दफ्तरी जो जुबान है, ऑफिशियल जो सरकारी लैंग्वेज होगी हमारी, वो क्या होगी, वो इंग्लिश होगी। नेशनल लैंग्वेज उर्दू और बंगाली, और ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। नाउ फीचर नंबर 6, इंडिपेंडेंस and autonomy of judiciary was guaranteed. Judiciary independence होगी, judiciary will be independent and give more autonomy to the judiciary. आजाद होगा, जुडिशरी आजाद होगा, पॉलिटिकली प्रेशराइज नहीं होगा, और ऑटोनॉमी वो खुद मुख्तार होगा। ऑटोनॉमी मीन खुद मुख्तारी दी जाएगी, वो खुद मुख्तार होगा अपने फैसले करने में, इंसाफ करने में। वो आजाद होगा और वो खुद मुख्तार होगा अपनी फैसले करने में। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी वर गारंटीड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशरी विल बी फ्री to make any decision. Next, a unicameral legislature was provided. Example, not National Assembly of Pakistan. Total member of the assembly were 156, equally distributed among East and West Pakistan. Out of these, 6 seats were specified for female. Unicameralism. Unicameral क्या होगी, पार्लियामेंट जो होगी वो यूनिकैमरल होगा। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होगा, यक ऐवानी, यूनि मीन वन, ऐवानी यक ऐवानी होगा। किस तरह, सिर्फ वो होगी नेशनल असेंबली। अगर पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ वन हाउस एंड वन हाउस विल बी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यहाँ तक अभी तक सेनेट है ही नहीं, ओनली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेज, वन हाउसेज एंड दैट हाउसेज, and that house name is National Assembly. और इस नेशनल असेंबली के कितने मेंबरान होंगे, 156 टोटल मेंबर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो कि बराबर की तकसीम की गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। इसी आउट ऑफ दिस 156 सीट्स, 6 सीट was specified for female, मुख्तस की गई। स्पेसिफाई मीन खवातीन के लिए रखी गई, स्पेसिफाई कर दी गई कि ये सीट्स खवातीन की होंगे इसी 156 सीट्स में। पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ वन हाउस एंड दैट हाउस नेम विल बी नेशनल असेंबली। टोटल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली विल 156 which were equally distributed among the East and West Pakistan, and that out of 156 seats, 6 seats were specified for female in 1962 constitution. Now, election to the office of the president as well as member of National Assembly and Provincial Assembly will be made by electoral college of BD members. Election of the office, जो इलेक्शन होगा किस चीज के लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए भी और प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा,
वो बीडी मेंबरान्स हो गए. I have already explained the BD system in previous lectures. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बीडी सिस्टम समझाया है कि ये जो बीडी सिस्टम था ये एक्ट एज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली. क्या था? इलेक्टोरल कॉलेज था जहां पर ये इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करेंगे, जो मेंबरान हैं नेशनल असेंबली के, जो 156 मेंबरान हैं, इनको भी ये वोट देंगे, ये लोग देंगे, अवाम वोट डायरेक्ट नहीं देंगे. और प्रोविंशियल सूबाई असेंबली को, यानी अगर हम देख ले तो ये इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है बीडी मेंबर्स का, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह बनता है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थी. यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन थी किस किस लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, नेशनल असेंबली के लिए और सूबाई असेंबली के लिए. यहाँ पर अवाम डायरेक्ट वोट किसको देंगे? बीडी मेंबरान को, बेसिक डेमोक्रेट्स को. तो ये इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा बेसिक डेमोक्रेट्स का, और फिर यही बीडी मेंबरान, बस अवाम सिर्फ यहाँ पर इनको इलेक्ट करेंगे यूसी पर, जो बेसिक, फिर ये जो बीडी के मेंबरान हैं ये इंटर्न किसको वोट देंगे? ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे. अवाम डायरेक्ट वोट नहीं देगा प्रेसिडेंट को. और यही बीडी मेंबरान फिर सूबाई असेंबली के मेंबरान को भी और कौमी असेंबली के मेंबरान को भी इलेक्ट करेंगे. समझ गई? Now again summarize. For making constitution in the country, Ayub Khan made a constitution commission headed by Justice Shahabuddin in 1961, but the recommendation submitted by this constitution commission was rejected because why majority of recommendation was not accepted to Ayub Khan. Now he framed another constitutional committee, and that constitution committee framed new constitution for the country, and Ayub Khan imposed new constitution in the country through ordinance on 1st March 1962. After 3 years and 9 months, new constitution was formed in the country. Now silent features, fundamental list. In original constitution, fundamental list rights of list were not included in the constitution, but later it was included in the constitution. पहला जो था फंडामेंटल राइट्स का जो लिस्ट था इसी कंस्टिट्यूशन में 1962 कंस्टिट्यूशन में नहीं था, फिर बाद में इनको इंक्लूड किया गया. प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जहां पर सदर के साथ ज्यादा इख्तियारात होंगे. ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी फॉर 5 इयर्स. कितने साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा? 5 इयर्स के लिए. वन फेडरेशन होगा और वही किस कंसिस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. नेशनल लैंग्वेज वाज बोथ उर्दू एंड बंगाली. इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगी? उर्दू और बंगाली दोनों होगी. उर्दू और बंगाली दोनों कौमी जुबान होंगी. इंग्लिश वाज ऑफिशियल लैंग्वेज. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी आज़ाद होगी और इसको इटोनमी भी होगी, खुद मुख्तार भी होगा अपने फैसले करने में. Parliament will consist of one house, unicameralism. Unicameralism means Parliament will be consist of one house, and that house name will be National Assembly, consist of 156 members. Unicameralism का मतलब कि पार्लियामेंट एक हाउस पर मुश्तमिल होगा और उसी एक हाउस का नाम क्या है? नेशनल असेंबली. और इसकी मेंबरान कितनी है? 156, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे दोनों विंग्स में, ईस्ट विंग्स और वेस्ट विंग्स में. और इसी 156 सीट्स में 6 सीट जो थे किसके लिए स्पेसिफाइड थे? खवातीन के लिए. इलेक्टोरल कॉलेज वाज बीडी फॉर प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली एंड प्रेसिडेंट इलेक्शन. इलेक्टोरल कॉलेज था, कौन था वो? बीडी. 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इसको इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया कि अवाम डायरेक्ट अपने नुमाइंदे को वोट नहीं देंगे, ना
प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान को, ना नेशनल असेंबली को, ना प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट देंगे, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अवाम पहले बीडी मेंबरान को वोट देंगे जो 80,000 थे, और फिर बाद में इसको बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया। वो इंटर्न किसको वोट देंगे? प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान को इलेक्ट करेंगे, नेशनल असेंबली के और प्रेसिडेंट। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। राइट डाउन, नोट करें होमवर्क अपने साथ। लर्न फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।